A few centuries ago, the port town of Ullal, in present-day southern Karnataka, was an important trading point controlled by Rani Abbakka I. कुछ शताब्दियां पहले, उल्लाल, वर्तमान दक्षिण कर्नाटक का बंदरगाह नगर रानी अब्बक्का प्रथम के नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। In the latter half of the 16th century, the Portuguese repeatedly attempted to take it over, but Rani Abbakka I formed strategic alliances with neighboring kingdoms and thwarted their attempts. 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुर्तगालियों ने बार बार इसे अपने कब्जे में करने की कोशिश की, लेकिन रानी अब्बक्का प्रथम ने पड़ोसी राज्यों के साथ रणनीतिक गठबंधन कर उनकी कोशिशों को विफल कर दिया। She was eventually captured and died fighting in prison. आखिरकार उन्हें बंदी बना लिया गया और वह जेल में लड़ते हुए शहीद हो गई। Her successor Rani Abbakka II is reported to have created fireballs out of coconut shells and set several ships of the Portuguese navy on fire. उनकी उत्तराधिकारी रानी अब्बक्का द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने नारियल के खोल से अग्नि गोले बनाए और पुर्तगाली नौसेना के कई जहाज़ों में आग लगा दी। Their inspirational stories are remembered even today through the Vaikachijene, a traditional form of dance drama. उनकी प्रेरणादायक कहानियां आज भी यक्षगान, जो कि नृत्य नाटक की एक पारंपरिक शैली है, के माध्यम से याद की जाती हैं। Though he was well received, his aggressive ways failed to establish friendly relations with the local rulers. यद्यपि उसका स्वागत किया गया, लेकिन उसके आक्रामक तरीकों ने स्थानीय शासकों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित नहीं होने दिए। During his second voyage 4 years later, he seized, tortured and killed Indian merchants and bombarded Calicut from the sea. 4 वर्ष बाद अपनी दूसरी यात्रा के दौरान उसने भारतीय व्यापारियों को पकड़कर यातनाएं दी और मार डाला तथा समुद्र से कालीकट पर गोलाबारी की। The Portuguese captured strategic ports, including Goa, in 1510, which became the capital of their colony in India, as well as several trading posts along the Malabar and Coromandel coasts. पुर्तगालियों ने कई रणनीतिक बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया, जिनमें गोवा 1510 में भी शामिल था, जो भारत में उनकी उपनिवेशीय राजधानी बना, साथ ही मलाबार और कोरोमंडल तटों पर कई व्यापारिक चौकियां भी। The Portuguese implemented a system known as cartas, pass, requiring all ships in the Arabian Sea to purchase Portuguese permits for navigation. पुर्तगालियों ने कार्टास, पास नामक एक व्यवस्था लागू की, जिसके अंतर्गत अरब सागर में चलने वाले सभी जहाज़ों को पुर्तगालियों से नेविगेशन के लिए अनुमति पत्र खरीदना पड़ता था। Ships without these permits were seized. जिन जहाज़ों के पास ये अनुमति पत्र नहीं होते थे, उन्हें जब्त कर लिया जाता था। This naval dominance allowed them to monopolize the spice trade between India and Europe for nearly a century. इस समुद्री प्रभुत्व ने उन्हें लगभग एक शताब्दी तक भारत और यूरोप के बीच मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की अनुमति दी। Alongside commercial exploitation, the Portuguese presence in western India was characterized by religious persecution. व्यावसायिक शोषण के साथ-साथ पश्चिमी भारत में पुर्तगालियों की मौजूदगी धार्मिक उत्पीड़न से भी जुड़ी थी। In Goa, they established the Inquisition in 1560, which severely persecuted Hindus, Muslims, Jews, and Christian converts suspected of practicing their original faith. गोवा में उन्होंने 1560 में इंक्विजिशन, धर्म अदालत, स्थापित की, जिसने हिंदुओं, मुसलमानों, यहूदियों और उन ईसाई धर्मांतरितों को बुरी तरह सताया जिन्हें अपने मूल धर्म का पालन करने का संदेह था। Such persecution was accompanied by forced conversions and the destruction of many Hindu temples, among other forms of abuse of the native population. The Goa Inquisition was only abolished in 1812. ऐसे उत्पीड़न के साथ जबरन धर्म परिवर्तन और कई हिंदू मंदिरों का विध्वंस भी किया गया,
साथ ही स्थानीय जनता पर अन्य प्रकार के अत्याचार भी हुए। गोवा इंक्विजिशन को केवल 1812 में समाप्त किया गया। द डच, कॉमर्स एंड कॉम्पिटिशन। डच, वाणिज्य और प्रतिस्पर्धा। The Dutch arrived in India in the early 17th century and, unlike the Portuguese, focused primarily on commercial dominance, particularly in the spice trade. डच लोग 17वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत पहुंचे और पुर्तगालियों के विपरीत उन्होंने मुख्य रूप से व्यापारिक वर्चस्व पर ध्यान केंद्रित किया, विशेषकर मसाला व्यापार में। They established a Dutch East India Company, with trading posts in various parts of India, including, on the west coast, Surat, Bharuch, Cochin, Kochi, and on the east coast Nagpattinam and Masulipatam, present-day Machilipatnam. उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और भारत के विभिन्न हिस्सों में व्यापारिक चौकियां बनाईं, पश्चिमी तट पर सूरत, भरूच, कोचीन, कोच्चि और पूर्वी तट पर नागपट्टिनम तथा मछलीपट्टनम, वर्तमान मछलीपट्टनम। Their most significant presence was in the Malabar region of Kerala, where they displaced the Portuguese from several trading centers. उनकी सबसे प्रमुख मौजूदगी केरल के मलाबार क्षेत्र में थी, जहां उन्होंने पुर्तगालियों को कई व्यापारिक केंद्रों से बाहर कर दिया। The Dutch presence in India was ultimately limited. It declined significantly after their defeat at the Battle of Kolchel in 1741, where the forces of Travancore under King Marthanda Varma decisively defeated the Dutch both on land and at sea. The Travancore kingdom was in the southern part of present-day Kerala. भारत में डच की मौजूदगी अंततः सीमित रही। 1741 में कोलाचल के युद्ध में उनकी हार के बाद यह काफी घट गई। इस युद्ध में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा की सेनाओं ने डचों को जमीन और समुद्र दोनों पर निर्णायक रूप से हरा दिया। त्रावणकोर साम्राज्य वर्तमान केरल के दक्षिणी हिस्से में था। This battle was a rare instance of an Asian power successfully repelling a European colonial force. यह युद्ध एशियाई शक्ति द्वारा किसी यूरोपीय औपनिवेशिक सेना को सफलतापूर्वक परास्त करने का एक दुर्लभ उदाहरण था। The French colonial ambitions. फ्रांसीसी औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाएं। The French entered India later, establishing their first trading post at Surat in 1668 and subsequently at Pondicherry, present-day Puducherry, in 1674, where they established their East India Company, Compagnie des Indes Orientales, and developed ambitious plans to establish a French empire in India. फ्रांसीसी बाद में भारत आए। उन्होंने 1668 में सूरत में अपनी पहली व्यापारिक चौकी बनाई और फिर 1674 में पांडिचेरी, वर्तमान पुडुचेरी, में, जहां उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी देस इंद ओरिएंटाल, स्थापित की और भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य बनाने की महत्वाकांक्षी योजनाएं विकसित कीं। ड्यूपलेक्स, who served as Governor-General of French India from 1742 to 1754, pioneered several colonial strategies that would later be adopted by the British. ड्यूपलेक्स, जिन्होंने 1742 से 1754 तक फ्रेंच इंडिया के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया, ने कई औपनिवेशिक रणनीतियों की शुरुआत की जिन्हें बाद में ब्रिटिशों ने भी अपनाया। In particular, he trained Indian soldiers in European military techniques, creating disciplined infantry soldiers known as sepoys. विशेष रूप से, उन्होंने भारतीय सैनिकों को यूरोपीय सैन्य तकनीकों में प्रशिक्षित किया और अनुशासित पैदल सैनिक तैयार किए जिन्हें सिपाही कहा गया। Dupleix also developed the strategy of indirect rule through puppet Indian rulers, who were installed through interventions in local succession disputes. डुप्ले ने स्थानीय उत्तराधिकार विवादों में हस्तक्षेप कर कठपुतली भारतीय शासकों को बिठाकर अप्रत्यक्ष शासन की रणनीति भी विकसित की। The French colonial ambitions in India were ultimately checked during the Carnatic Wars,
1746 to 1763, a series of conflicts between Britain and France. भारत में फ्रांसीसी औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाएं अंततः कर्नाटक युद्धों 1746 से 1763 के दौरान रोक दी गईं, जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़ी गई संघर्षों की श्रृंखला थी। Despite initial successes under Dupleix, who captured Madras, present-day Chennai, in 1746, the French ultimately lost ground to the British and their colony was reduced to Pondicherry and a few smaller enclaves. डुप्ले के नेतृत्व में शुरुआती सफलताओं के बावजूद, जिन्होंने 1746 में मद्रास, वर्तमान चेन्नई, पर कब्जा कर लिया था, फ्रांसीसी अंततः ब्रिटिशों के सामने हार गए और उनकी कॉलोनी केवल पांडिचेरी और कुछ छोटे-छोटे क्षेत्रों तक सिमट गई। Like the Dutch, and unlike the Portuguese, the French colonial powers did not much intervene in Indian social and religious life. डचों की तरह और पुर्तगालियों के विपरीत, फ्रांसीसी औपनिवेशिक शक्तियां भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक जीवन में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती थी। A rare exception was the destruction in 1748 of Pondicherry's large Vedpurishwaran temple, ordered by Dupleix on the persistent request of Pondicherry's Jesuit priests and Dupleix's own wife, with a view to asserting the dominance of Christianity. एक दुर्लभ अपवाद 1748 में पांडिचेरी के बड़े वेदपुरेश्वरन मंदिर का विध्वंस था, जिसे डुप्ले ने पांडिचेरी के जेसुइट पादरियों और अपनी पत्नी के लगातार आग्रह पर आदेश दिया था, ताकि ईसाई धर्म की प्रभुता स्थापित की जा सके। Generally, however, the French had to be content with a modest amount of trade with India. हालांकि सामान्य रूप से फ्रांसीसियों को भारत के साथ सीमित मात्रा में व्यापार करने से ही संतोष करना पड़ा। Enter the British. ब्रिटिशों का प्रवेश। Britain dominated the Indian subcontinent for nearly 2 centuries. ब्रिटेन ने लगभग 2 शताब्दियों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रभुत्व बनाए रखा। How did this happen? यह कैसे हुआ? Many books have dissected the methods of the British rulers. We will not attempt to tell a complete story, but will focus on the main aspects of their colonial presence in India. कई पुस्तकों ने ब्रिटिश शासकों की पद्धतियों का विश्लेषण किया है। हम पूरी कहानी बताने का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि भारत में उनके औपनिवेशिक प्रभुत्व के मुख्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे।